Hardly 50 days are left for CAC 2024, and if you have been a serious aspirant, rather, I would call you a candidate. So, if you have been a serious candidate, you know that now the latest pattern of UPSC expects you to rely on yourself way more than relying on the options. So, therefore, to help you out with this particular thing, I am coming here on Anjan Kalash IAS with this revision series for CSE 2024, and it has to be the UPSC way. So, welcome all of you. I am Arpita Prakash, and I will take just 5 minutes of yours, maybe even less than that if needed. So, your 5 minutes right here will save a lot of time ahead because we are not going to have any separate intro video for it. We'll just take initial 5 minutes for making you understand about this, and quickly I will take you through whatever we have planned and what do we do here and how do we start with polity and important topic, and we'll do those time bound questions and everything right here in this particular video. So please allow me the initial few minutes of yours. I know they are very precious and I'll take care of it. Firstly, the question is, why this revision series? See the new pattern. If at all they follow, they continue to follow it in the subsequent papers. If they don't, you know already the previous pattern where you could have used elimination and reached out to a lot many answers. If that is happening or that is going to happen, fine enough. But we have to be prepared as per the new unpredictable, very tough pattern. You know that the elimination trick works not in almost most of the question, like hardly a few of the questions could have been done that way, and that too very tricky one. Now knowledge plays an immense role, but for those topics we do not have an idea about, like the current affairs topic or random sources topics, even in static, you cannot even go ahead with the knowledge part. It's impossible to know and remember everything. So one thing is very clear, that the knowledge part, where especially the static portion comes in, where we do have the reliable sources, where do we have the fixed sources, at least there the knowledge portion comes in and we cannot have a question mark on it. Now if you have particular, like if you have the proper knowledge of a particular subject and a particular topic, only then you would be able to go ahead with any kind of calculated guessing, considering the pair related question that they ask you, right? Or the statement and the assertion reasoning kind of a question that they ask you. So even for that calculated guessing, you need to have good amount of knowledge and very precise knowledge, not confusing knowledge. Knowledge not in the sense that, okay, I have, I can faintly remember that I have read about this topic or I've heard about this topic, but you're still not able to recall the pointers related to it, right? And the trend, focus, the observation of the particular question, the language, the logic hidden in the question, all of this, they will also play their role, which otherwise people call as tricks. ठीक है, ट्रिक्स कहना तो बहुत ही अंडरमाइन करना हो जाएगा, बट येस दीज थिंग्स डू प्ले अ रोल, बट वेरी लिमिटेड. इवन फॉर देम यू नीड टू हैव अ सर्टेन नॉलेज बेस. उसी के बेसिस पे कोई चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो, नहीं तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस टू यू. सो एनी वेज कंसिडरिंग दिस, यही हमारे काम की चीज़ है और जितना हमारे हाथ में है, द ओनली थिंग दैट इज़ नाउ इन आवर हैंड इज़ टू गो फॉर दो स्टैटिक पॉइंटर्स जहाँ पर हम नॉलेज के रोल को बिल्कुल जस्टिफाई कर सकते हैं, बिकॉज फॉर द अनप्रेडिक्टेबल टॉपिक्स वी कैन नॉट डू दैट. And also you need to understand that now the role of merely reading from your notes, merely making notes, merely making summaries, going through the summary video, all of these things are playing any negligible role. इनका कोई importance नहीं बच गया है until and unless you have to see the conditions that you have to face in the exam pressure. So please understand that we do read a lot of things throughout the year, but under the pressure of the exam, one thing that happens to us is making the silly mistakes, right? So very easy questions we do wrong, or something that we already know we do wrong. Why? Because there is a lot of pressure. We are not, at times we are not even able to mark the right answer in the OMR. We mark the right answer in the question paper but not in the OMR. That is also happening because of the pressure. We are not able to recall something that we have already done multiple times. Why? Because we have just gone through our notes, the short notes, the summary, and all of that. So every time the notes come, let's say this is a slide, let's say this is your note for a particular topic or a subtopic. So if you'll just quickly read, okay, ye likha hua, ye likha hua, ye likha hua, if you read it like that, it will be very easy for you to feel by yourself that, okay, I remember all the points because you're familiar with the keywords. Let's say you're familiar with this word, this word, this word, this word. So you'll feel that I know all of that.
But when it comes to recall that particular point in the exam hall, you are making the mistakes there. That is, of course, happening because of less revision. And even if more revision, because you just read what you have written in the notes or in the books you have highlighted or marked or used your anything for that matter, any kind of sticky notes or कुछ भी आपने कहीं पे कुछ लगा लिया, but less clarity. You are not having clear concepts because you focus on only reading and reading and reading, and that is what you call as the revision, right? And then less emphasis on the brain and more on the visuals. By visuals I mean not only the pictures or something but even the text. So if you have made even the self-made notes, ठीक है, वो भी अगर आपके हैं, you put less emphasis on brain. You try to remember and recall and reproduce and articulate it as per the demand of the paper less, but you just focus on reading it. अभी इसको हमने ट्राई एंड टेस्ट करा हुआ है, ठीक है, मैंने एक सक्सेसफुल सीरीज कंप्लीट कराई हुई है फरवरी के महीने में. आई टॉक अबाउट इट, सो जस्ट अलाउ मी अ फ्यू मोर मिनट्स. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर ऑल्सो एट टाइम्स वेरी कन्फ्यूज बिटवीन वॉट डू वी नो एंड वॉट वी हैव हर्ड अबाउट, है ना. मतलब कोई टर्म है जो हमने सुना हुआ है, सो वी आर फेमिलियर विथ इट, बट उसको जो हम जानते हैं उससे रिलेट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है. एंड प्रीलिम्स एग्जाम इज ऑल अबाउट दैट पर्टिकुलर रिलेशन विच वी आर नॉट एबल टू फॉर्म. Now this is something whatever I've just talked about, I have already tried and tested. ठीक है, तो first thing which I call about reverse reading and recalling. Now what is this reverse reading? I'll take you through this as and when we proceed with the further sessions. जैसे एक एग्जाम्पल अगर जस्ट क्विकली मैं दे दूँ, मान लो आप कोई भी एक्ट पढ़ते हो, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यू हैव टू स्टडी इट इन हिस्ट्री एंड पॉलिटी. यूजुअली व्हाट पीपल विल डू, मेक समरीज आउट ऑफ इट. सो लक्ष्मीकांत उठाएंगे, चैप्टर 1 मिलेगा, पहला एक्ट मिलेगा, अंडर दैट वॉट एवर प्रोविजंस दे हैव रेड, they'll just write it and they'll read it every time and they'll feel that okay, we remember it. But as soon as you see a particular provision given and they ask you in the paper to choose from amongst a particular act, you are confused. स्पेशली इट हैपन्स इन द केस ऑफ चार्टर एक्ट्स, है ना. 1813 भी है, 33 भी है, 53 भी है, तो 1793 भी है, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है. Now in that case what happens, I ask you to go for a reverse reading. So I ask you to take a particular provision. ठीक है, मान लो हमने बात करा जैसे कि, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एक कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट हुआ, ठीक है, कैलकाटा में हुआ, कौन से एक्ट के थ्रू हुआ, कहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइस रॉय बोला जाने लगा, कहाँ पर एजुकेशन के लिए कोई स्पेशल स्टेप लिए गए, कहाँ पे ट्रेड जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली, ट्रेडिंग मोनोपोली जो है वो वापस ले ली गई, कहाँ पे पार्शियल ली गई, कहाँ पे कंप्लीट ली गई, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट. देयर आर सो मेनी प्रोविजंस ऑफ डिफरेंट एक्ट्स. सो दैट आई कॉल एज रिवर्स रीडिंग. दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल. So this will do as an exercise so that it put more emphasis on your brain and less on what you have written as a note or what your book says, right. Then recalling. Now recalling पे क्या है, हम नए format पे अभी just बात करेंगे. In many of my earlier batches, so not as a revision technique I would say, but rather just to help you, help those people understand कि आप एक क्लास में टॉपिक ख़त्म कर रहे हो, उसके बाद उसको कैसे आप आगे प्रोसीड कर रहे हो, और PYQ भी सॉल्व करना है तो कैसे करना है. So I've taken multiple batches of different subjects since 2017 regarding UPSC CSE, and there I have talked about this in the batches. But this I am giving as a free मतलब फ्री प्लेटफॉर्म पे इसको मैं अभी लेकर आ रही हूँ एज अ फ्री इनिशिएटिव फॉर द वेरी सिंपल रीजन दैट वी डू नॉट हैव मच टाइम इन हैंड. आई रियली वांटेड टू मेक इट अ पेड वन, बिकॉज आपको पता है मेरा ऐप है जो अंजन कलश हाइस, वहाँ पे पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं. 2 NCERTs ख़त्म हो चुकी हैं, हिस्ट्री एंड पॉलिटी, एंड देन वी आर राइट नाउ अंडर गोइंग द कोर्स ऑन एंशिएंट एंड मिडिएवल हिस्ट्री. देयर इज़ ऑल्सो वन कोर्स ऑन नोट मेकिंग एंड एवरीथिंग विच इज़ कम्प्लीटेड. तो वो तो एक चल रहा है, लेकिन वहाँ पे नहीं करने का ये रीज़न है कि अभी हार्डली हमारे पास 50 दिन है. 50 दिन में कुछ भी ऐसा नया पेड लेकर आना बहुत ही इमेच्योर हो जाएगा, एंड मे बी इट्स ऑल्सो वेरी अनप्रोफेशनल. आपको बहुत जगह मिल रहे हैं ऐसे प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स एंड पता नहीं क्या क्या, बट मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट के कुछ दिनों में आपका पैनिक इतना ज़्यादा हो जाएगा कि यू माइट फील लाइक यू वांट टू परचेज समथिंग एंड यू विल स्टिल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई इट, बिकॉज यू विल फील कि मेरे को अपना भी पढ़ना है. सो बिटवीन दैट सेल्फ स्टडी एंड द पेड वन, ठीक है, आप कहीं पे फंस जाओगे एंड यू विल नॉट बी एबल टू डू ईदर ऑफ दैट. एटलीस्ट फ्री इनिशिएटिव होने का ये फ़ायदा होता है that it's in your hand, you don't have that pressure because it is not paid for you, so you'll watch it in as per your free time. तो आप दोनों बैलेंस कर लोगे. अभी यही चीज़ अगर 50 दिन की जगह मेरे पास 200 दिन होते या
100+ days भी होते, I would have also gone for a paid one, because then I would have enough time in hand and you also would have enough time in hand to go through it. ठीक है, तो मेरे पेड कोर्सेज अभी वही चलेंगे जो प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चलेंगे. ये रिविजन वाले जो हैं फॉर द टाइम भी विल गो फ्री ऑन यूट्यूब. नाउ द न्यू फॉर्मेट दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, यूपीएससी का जो नया फॉर्मेट है उसका टेस्टिंग हो चुका है इन द 30 days 30 minute सीरीज that I've already run on YouTube in the month of February 2024. The series already has been completed. आप चाहो तो प्लीज़ एक बार उसको चेक कर लेना. आई वुड जेन्युइनली रिक्वेस्ट यू, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं. आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चंस एंड आंसर्स मिलेंगे. बहुत से लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया है. चैनल नया है तो अभी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं. आपको नंबर्स व्यूज़ में उतने नहीं मिलेंगे, बट आप कंटेंट क्वालिटी खुद चेक कर लेना. ठीक है, पूरा फ्री और इनिशिएटिव तो जो था वो कम्प्लीटली डन है, कम्प्लीटेड है. सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक अबाउट इट. हो गया. अब हम यहाँ से काम की बात करेंगे. तो आपसे मैंने 5 मिनट मांगा था, वो थोड़ा एक्स्ट्रा खिंच गया, उसके लिए आई एम सॉरी. एक्स्ट्रा और 5 मिनट लग गए, बट आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द थिंग्स. सो नाउ कम्स द मेन पॉइंट दैट व्हाट डू वी डू हियर, बिकॉज विल जस्ट स्टार्ट. ठीक है, विल जस्ट स्टार्ट विद द पॉलिटी. सो आई रियली नीड टू टेल यू दैट व्हाट डू वी डू हियर, हाउ डू वी डू हियर. फर्स्टली विल डू द रिविजन ओनली ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. लास्ट के कुछ दिनों में इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गो फॉर ऑल द टॉपिक्स, राइट. विल टेक मल्टीपल सब्जेक्ट्स बिकॉज यूपीएससी आस्क्स मिसलेनियस सब्जेक्ट, तो हमको सारा ध्यान में रखना है. हाउ विल आई चूज द टॉपिक, मेरे पास कोई अलग से ज्ञान तो है नहीं दैट यूपीएससी हैज़ टोल्ड मी कि भाई मैं ये पूछूंगा या पूछूंगी, है ना. हमारे पास तो वो चीज़ नहीं है. So that relevance is going to be based on the PYQs and the current affairs, because even if you see the static questions, most of them have some current affairs linkage. So the static is also derived from the current affairs. ठीक है, तो इनके ही basis पर we'll select the topics and I'll tell you with each topic also, each subject also, and we'll revise. The whole idea here is to master the static portion. Current affairs और ये सब भी करेंगे, लेकिन अभी primarily static पे focus है, because this is the only area where we can actually rely much on the knowledge part. बाकी में थोड़ा guessing और ये सब दिमाग लगाना पड़ता है. यहाँ कम से कम if you have the fixed sources. अब सारे स्टैटिक भी आजकल एक सोर्स से नहीं आते हैं, ऑफकोर्स नहीं आते हैं, लेकिन जितना हमारे हाथ में है, यू नो, समथिंग दैट विच इज़ इन आवर हैंड, एटलीस्ट वी कैन इंश्योर दैट व्हाट इज़ गिवन इन द टेक्स्ट बुक वो हम गलत नहीं कर रहे हैं. ठीक है, टाइम बाउंड मैनर में करेंगे ताकि यू डू नॉट एक्सीड द टाइम एज पर योर विम्स एंड फैंसीज एंड एज पर योर विशेस. वो आप नहीं कर सकते हो. बहुत ही, अगर आप फॉलो डिसिप्लिन के साथ करना चाहते हो तो टाइम बाउंड में करेंगे. लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए करेंगे, बिकॉज वी हैव टू फोकस ऑन द यूजफुलनेस ऑफ रिकॉलिंग विच आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट हैज़ बीन ऑलरेडी टेस्टेड इन द 30 days सीरीज. ठीक है, एंड देन एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो दैट यू हैव टू रिलाई ऑन योर सेल्फ नाउ rather than relying only on the options. अगर options favorable मिल जाते हैं, elimination work करता है तो good है, ठीक है, लेकिन उससे कट ऑफ तो ऑफकोर्स फिर ऊपर जाएगा, बिकॉज अगर वो आपको हेल्प हो रहा है तो दूसरों को भी तो हो रहा है ना. सो दिस इज एक्चुअली मोर beneficial in my opinion that you rely on yourself. Now let's begin. So we start with polity, the first topic that I've chosen for today, and I'll not complete this whole topic today for the very simple reason that this is a kind of a sample video for you. ठीक है, देखो इसको बनाने में ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें जो आपको दिख रही हूँ मैं वर्बली अपने मन से कुछ भी बोली हूँ, नहीं. पहले एक रफ शीट में आई हैव प्रिपेयर्ड दोज क्वेश्चंस एंड आंसर्स, देन आई विल बी डूइंग इट फॉर यू. तो मेरा डबल मेहनत लग रहा है एंड इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू फिगर दैट आउट. ठीक है, सो द सीरीज विल कंटिन्यू ओनली बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स. आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, एक जेन्युइन मुझे डिसेंट लगेगा रिस्पॉन्स, तो मैं कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो आई ऑल्सो हैव अदर वर्क्स टू डू. आई विल नॉट इन्वेस्ट मच टाइम इन दिस, क्योंकि ये कोई प्रमोशन के लिए है ही नहीं. दिस इज जस्ट टू हेल्प यू आउट. ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का टॉपिक मैंने उठाया है, करंट अफेयर्स एंड PYQs के बेसिस पे. दिस टॉपिक इज वेरी रेलिवेंट. आई टेल यू वाई एंड हाउ एज वी प्रोसीड. नाउ even if I have chosen one topic and you will have certain questions from this, you will also have certain other derived pointers in other topics. ठीक है, इसी से रिलेटेड हम और भी दूसरे पॉलिटी के टॉपिक्स को बीच में लेकर आएंगे. इन एनी सब्जेक्ट इफ देयर विल बी अ नीड ऑफ एनी इंटरलिंकेज ऑफ अदर टॉपिक, मैं वो भी करवा दूंगी, बिकॉज यूपीएससी डजंट गिव यू अ फिक्स्ड पैटर्न दैट ओके आई एम आस्किंग द क्वेश्चन इन एनी सीरियल मैनर, सीरियल ऑर्डर. नो, दे जस्ट रैंडमली आस्क यू क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट्स. ठीक है, अब ये सब कैसे होगा यू विल अंडरस्टैंड एज वी प्रोसीड विद डिफरेंट टॉपिक्स, राइट. देर इज अ प्री रिक्विजिट फॉर इट, फॉर दिस एक्सरसाइज टू हैपन. यू कैन नॉट जस्ट वॉच इट, ये कोई बिंज वॉचिंग सीरीज नहीं है, ऐसा मत करना. आराम से बैठ के इसको सुनना बिल्कुल भी मत. यू विल हैव टू राइट इट डाउन, नहीं तो एल्स हाउ विल यू एनालाइज योर परफॉर्मेंस. ठीक है, नहीं तो दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लमेटिक एरिया.
So you can pause the video, have a pen and paper with you, or any digital device to write. Basically, I just want you to have something to write on. बस कुछ भी ऐसा ले आओ, कोई बोर्ड पे लिखते हो उसको रब कर देते हो वो भी चलेगा, बट जस्ट हैव समथिंग टू राइट ऑन. ठीक है. Regarding the time, you don't have to maintain any timer or something. I will take care of the time. I'll take care of much of the thing. This is not something which is in my hand. You have to do, right? As I've already told you, the series will continue based on your response. So let's start. So ये आप एक सैम्पल वीडियो की तरह लो. अगर आपको फ़ायदा लगता है मेरे को बताना कमेंट में. I'll continue with the series. Else not an issue. ठीक है. चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं. एज आई टोल्ड यू यूनियन एग्जीक्यूटिव के टॉपिक से. तो अभी क्या होने वाला है, आई गिव यू वन क्वेश्चन, देन आई टेल यू टाइमर स्टार्ट्स एंड टाइमर स्टॉप्स. जितने टाइम में मोस्टली इट विल बी ऑफ 30 सेकेंड्स. ठीक है. यू क्विकली हैव टू थिंक ऑफ द आंसर एंड अपने उसमें स्क्रिबल कर लेना जहाँ पे भी आपने अपने लिखने का सोचा है. यू डोंट हैव टू राइट द क्वेश्चन और उसको सजा के कुछ नहीं लिखना. यू डोंट हैव टू डेकोरेट इट. जस्ट क्विकली थिंक ऑफ द आंसर, वट एवर यू कैन रिकॉल एंड राइट इट. एंड व्हेन आई से द करेक्ट आंसर देन यू क्विकली रिवाइज इट ऑल्सो. ठीक है. 30 seconds would be for most of the question because उतना ही time is genuine. Wherever I feel you would need more time, I would give you maybe 60 seconds or something, जैसा भी ज़रूरत होगा. ठीक है. इसलिए टाइमर का कंट्रोल मेरे हाथ में होगा. I'll tell you when to start and when to stop. ठीक है. And please strictly follow it. चलो. So we start with the first question. The first question that you have to tell that which part of the constitution. अच्छा. टाइमिंग विल स्टार्ट आफ्टर आई कंप्लीट द क्वेश्चन. सो जस्ट फर्स्ट लिसन टू द क्वेश्चन, देन ओनली आप जो है टाइमर, मैं सामने टाइमर लेकर बैठी हूँ, सो उसको उसी हिसाब से आई जस्ट यूज दैट. ठीक है. विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज द टॉपिक ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव डील्स विद. ठीक है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आई डोंट थिंक फॉर दिस एक्चुअली 30 सेकेंड्स की भी रिक्वायरमेंट थी. सो मैं 15 में बंद करूँगी. 11. ओके. टाइम स्टॉप्स नाउ. 15 सेकेंड्स हो गए हैं. ठीक है. आई होप आपका आंसर आपने लिख लिया होगा. ओके. सो बेस्ड ऑन दिस आई जस्ट कीप चेंजिंग द ड्यूरेशन 15, 20, 30 जितना भी मुझे लगेगा. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है. नाउ इन दिस पार्ट जो भी आपने लिखा होगा, इन दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्स यूनियन एग्जीक्यूटिव, हाउ मेनी चैप्टर्स हैव बीन गिवन. अच्छा, इस सीरीज को ना पूरा होने दे देना. अभी 2 ही क्वेश्चन पे जज मत करने लग जाना कि मैम क्या पूछ रही है तो हमारे काम का नहीं है. आपको समझ आएगा अभी आपके काम का क्यों है. जस्ट एटलीस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो प्लीज लेट इट गेट फिनिश्ड, तभी आपको फ़ायदा समझ आएगा. ठीक है. हाउ मेनी चैप्टर्स आर गिवन. मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ. हाउ मेनी चैप्टर्स इन कॉन्स्टिट्यूशन दिस पर्टिकुलर पार्ट. अब मैं पार्ट का नाम तो अभी रिवील नहीं कर सकती बिकॉज देन इट विल बी द आंसर. सो जो भी पार्ट आपने मैंशन करा उसमें हाउ मेनी चैप्टर्स आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. योर टाइम स्टार्ट्स. इट विल बी फॉर 15 seconds. Just write the number of chapters, and if you can recall that which chapter has which particular heading, you can write that as well. So your time stops now. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं सबका आंसर भी दूंगी. पहले एक पेज पे हम सारे क्वेश्चन अभी कर लेते हैं जितने हमारे पास फिट इन होते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दैट which are the, you would say, or what does, rather I should put it like that, what does union executive comprise of. ठीक है. इसमें क्या क्या आता है और ओवरऑल व्हाट आर द आर्टिकल्स दैट डील्स विथ यूनियन एग्जीक्यूटिव. दोनों के आंसर करने हैं. सो आई वुड से दैट यू वुड रिक्वायर 30 seconds फॉर इट. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. वेरी क्विकली ब्रेन पे प्रेशर डालो. जो याद आ रहा है लिखो. 10 seconds over. चलो 30 नहीं करो, 45 seconds ले लो. 20 seconds over. $35. 45 ओवर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो इसमें आपको आर्टिकल्स और व्हाट डज यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट और कंप्राइज ऑफ दोनों ही लिखना था. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट
एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, यही मैंने अभी थोड़े वक्त पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे पूछा था, जिन लोगों ने किया है उनको पता है कि व्हाई डिड आई आस्क दिस। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन, ठीक है, किस में वेस्टेड है आपको वो बताना है, एंड विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट इट आपको वो भी बताना है. सो फॉर दिस यू वुड जस्ट रिक्वायर 15 seconds. स्टार्ट्स नाउ. ओके, योर टाइम इज ओवर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. दैट, ये तो हो गया एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, ठीक है, किस में है और कौन से आर्टिकल में है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, ठीक है, ये क्या है, व्हाट इज द एक्सटेंट, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन कहाँ तक अप्लाई हो सकता है, व्हाट इज दैट एक्सटेंट. सो फर्स्टली यू हैव टू टेल द आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में है, एंड देन वट एवर पॉइंट यू कैन रिमेंबर समराइज इट इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है. आप कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज गिवन, सो यू कैन नॉट राइट द एग्जैक्ट वर्बैटिम लाइन्स, विच इज फाइन. आई डोंट एक्सपेक्ट यू, आई एक्सपेक्ट यू टू नो अबाउट द समरी. यू माइट टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, सो आई गिव यू 30 seconds फॉर इट. लेकिन आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है. यू हैव टू रिमेंबर द आर्टिकल एंड व्हाट इज द डिटेल टॉक्ड अबाउट, कि एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन क्या है, ठीक है, कहाँ तक ये एक्सटेंडेड है, कहाँ तक लाई करता है, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं. So your time starts now, 30 seconds. All right, your time stops now. Now, to come to the next questions, I have got a lot of questions. तो आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए ना मुझे आपको यहाँ पे थोड़ा आंसर पहले बता के चेक करवाना पड़ेगा, फॉर द रीज़न दैट दोज रेफरेंसेज वुड बी नीडेड, ठीक है. तो अगर मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन लिखने दे दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा आंसर्स. तो इट्स बेटर दैट वी फर्स्ट डू द आंसर, यू मैच हाउ मेनी ऑफ थिंग्स यू हैव डन राइट रॉन्ग, कहाँ रिकॉल हो पाया नहीं हो पाया, और ये सब आप देखो बिल्कुल बेसिक किताब आपके लक्ष्मीकांत और कॉन्स्टिट्यूशन से पूछी हुई है. सो इट्स नॉट समथिंग आई एम यूजिंग एनी रैंडम रेफरेंस सोर्सेज फॉर दैट, राइट. सो आई होप आप समझ पा रहे हो. तो चलो अब आंसर्स मैच करते हैं, थोड़ा अपने उसी हिसाब से लिख लेना. द फर्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज आई प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट आफ्टर फिनिशिंग दिस, ठीक है, ये वाला हम खत्म कर लेते हैं, मैं इसका डिटेल आपको पढ़ा समझा देती हूँ, एंड देन विल क्विकली प्रोसीड टू दैट. सो द क्वेश्चन इज कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ यूनियन एग्जीक्यूटिव. द आंसर इज पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आप चेक करते जाना कि आपने कितना सही करा है या कितना नहीं करा है, ठीक है. मैं आपको साथ में कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं वो दिखाते भी जाऊंगी वेर एवर इट इज़ नीडेड, सो यू कैन सी, सो दैट यू हैव दैट क्विक रेफरेंस टू हियर एज वेल, ठीक है. ये देखो, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव. अब ये समझो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में, अभी देखो, पार्ट 5 डील्स विद द यूनियन इन जनरल, उसमें चैप्टर 1 डील्स विद द एग्जीक्यूटिव, ठीक है. अब मेरा क्वेश्चन क्या था, यूनियन एग्जीक्यूटिव इज इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो भी तो ये बात वही हो जाएगी ना, तो भी इट विल बी पार्ट 5 ओनली. इट इज़ जस्ट वन ऑफ द चैप्टर्स अबाउट विच आई हैव आस्क्ड, दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू कि अगर मैं चैप्टर पूछ रही हूँ तो उसका कोई रीज़न है. लेकिन फॉर द टाइमिंग लेट्स प्रोसीड स्लोली. So the first answer is part 5 of the constitution. Very quickly from here you will try and remember what are the first 4 parts. और 4 के बाद एक और आता है बट उस पर आते हैं. So part 1 क्या है, जहाँ हम यूनियन एंड टेरिटरी की बात कर रहे हैं. पार्ट 2 क्या है, where we talk about the citizenship. पार्ट 3 क्या है, where we talk about the fundamental rights. पार्ट 4 क्या है, where we talk about the DPSPs, ठीक है. और पार्ट 4A क्या है, where we talk about the fundamental duties. Then part 5 talks about the union in general. Within that, one is your executive, then you have legislature and certain more things. तो वो क्या क्या है अभी मैं आती हूँ, पहले ये देख लो, ठीक है, so that it helps you. Part 1 union and territory, part 2 citizenship, part 3 fundamental rights. I hope it's clear, ठीक है. I told you that even if I have chosen the topic of union executive, I'll take certain additional points also. I just told you right in the beginning. This is what I meant. Indirect topics also. Part 4 DPSP and 4A fundamental duty. ठीक है, फिर 5 यूनियन है. फिर देखो पार्ट 6 क्या हो जाता है,
स्टेट आ जाता है यहाँ से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट विल कम टू दैट लेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी चैप्टर्स आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस पार्ट। तो इस पार्ट में कितने चैप्टर्स दिए गए हैं? एक चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर 1 ऑन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, चैप्टर 2 ऑन पार्लियामेंट, chapter 3 on the legislative power of president, which is primarily talking about the ordinance making under article 123, chapter 4 on the union judiciary, and chapter 5 on the CNAG, comptroller and auditor general of India. So let us get back to this कि if we have to give the answer of how many chapters, तो कितने chapters हैं? 5 chapters है ना, 5 chapters are given in part 5. if we have to quickly revise again कि part 5 के पांचों चैप्टर का नाम क्या था, अभी आपको मैंने दिखाया, लेकिन फिर से देखते हैं। रिवीजन का देखो यही मतलब होता है, हमें रिकॉल करके रिवाइज करना है, देख देख के नहीं रिवाइज करना है, ठीक है। यही मैंने 30 डे सीरीज में करवाया था। चैप्टर 1 क्या था? एग्जीक्यूटिव था। व्हाट आर द थिंग्स कमिंग अंडर एग्जीक्यूटिव, विल टॉक लेटर अबाउट इट लेटर। चैप्टर 2 क्या था? पार्लियामेंट था। चैप्टर 3 क्या था? लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस वाला था, ठीक है। चैप्टर 4 क्या था? जुडिशरी, द यूनियन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। एंड चैप्टर 5 क्या था? CNAG, ठीक है। नाउ विद इन दिस ऑल्सो एग्जीक्यूटिव हैज अदर थिंग्स, right? Executive has certain other things which I have asked in the next question, that what does union executive, now I have to tell only about the executive, what does it comprise of? ये तो चैप्टर्स में हो गया कि एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशियरी है, लेजिस्लेटिव पावर है और CNAG है, ठीक है। बट विद इन एग्जीक्यूटिव व्हाट डज इट कंप्राइज ऑफ एंड उसके आर्टिकल्स क्या होते हैं? सो हियर द आंसर फॉर यूनियन एग्जीक्यूटिव इज आर्टिकल 52 to 78. Let us first get back to this. देखो, chapter 1 is on executive. Now within chapter 1 also several sub parts are there like president etc. लेकिन it starts with 52 and ends with 78 क्योंकि उसके बाद तो chapter 2 on parliament start हो जाता है. Now within this also there are many things, ठीक है। यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि यूनियन एग्जीक्यूटिव कंप्राइज ऑफ व्हाट, तो कंप्राइज ऑफ व्हाट पे अभी आएंगे, बट आर्टिकल्स कवरेज इज 52 to 78. नाउ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, अब एक चीज़ देखो ध्यान रखना, यहाँ तो मैंने नहीं पूछा बिकॉज वी डू नॉट हैव मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस टू गिव यू ना, आई डोंट हैव टू गिव यू, आई जस्ट हैव टू टेल यू इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। इन द एग्जाम हॉल इफ दे आस्क यू कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हेडिंग्स दी गई हैं बेस्ड ऑन दैट यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या है, if something like that is asked, then the answer would be president, vice president, council of ministers and attorney general of India, ठीक है। but अगर if they ask you something like this just in general, not mentioning specific about heading of the constitution or something, so just in general पूछेंगे और अगर pairs में पूछेंगे, ठीक है, and along with this if you have even PM as one of the option you can mark it correct because now they might ask you in pairs. तो इफ़ दे गिव यू ऑल दोज ऑप्शंस दे कैन आस्क यू कि यू नो ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ऐसे पूछ सकते हैं। वाई डू आई से सो? पहले तो उसको देख लो, समझ लो कि मैं बोल क्या रही हूँ। एग्जीक्यूटिव का फर्स्ट पार्ट में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट तो है, सो दिस वी आर वेरी क्लियर अबाउट दैट, इट इज़ गिवन इन द हेडिंग ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट इट टॉक्स अबाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ फॉर इंडिया, दीज आर गिवन इन द हेडिंग ऑल्सो, ठीक है। अनदर हेडिंग इज कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, पर वो बिजनेस पे बात कर रहा है, लाइक दे आर नॉट द अथॉरिटी बेसिकली। अथॉरिटीज में दीज 4 थिंग्स आर मैंशनड, राइट। बट विद इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इफ यू गो इन डिटेल ऑफ दिस आर्टिकल, इफ यू हैव डन, मतलब ये रिविजन क्लास है तो आई वुड अज्यूम दैट यू ऑलरेडी नो बिकॉज आई एम नॉट हियर टू टीच यू, एक्चुअली आई एम हियर टू हेल्प यू रिवाइज, ठीक है। तो अगर मैं आपको 74 और 75 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको वो पता होगा, बट जस्ट क्विकली शोइंग यू। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, तो देखो ये साफ लिखा हुआ है दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस. Now here if prime minister is mentioned, it is not mentioned in the heading because council of minister is headed by the prime minister already, ठीक है। So now based on the nature of the question, the language of the question, your answer would also differ. So heading wise
President, Vice President, Council of Minister and Attorney General. They constitute Union Executive. But because we treat Prime Minister, हम एक separate heading की तरह otherwise पढ़ लेते हैं, so that could also be included if in general question is asked. I hope you are getting to understand how to read between the lines and छोटे से पॉइंट है जो लक्ष्मीकांत में 2 लाइन में खत्म हो सकता है, हम उस पर क्यों इतना डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं. आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन. ठीक है, अब जब मैंने अभी ये टेलीग्राम पे दिया तो बहुत लोगों ने गलत ऑप्शंस भी चूज़ किया. आप टेलीग्राम चैनल पे भी जाके चेक कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. बहुत से लोगों ने उसको गलत मार्क करा, लेकिन द आंसर इज इट लाइज विद द प्रेसिडेंट, ओनली प्रेसिडेंट. ठीक है, अभी मैं इसका डिटेल समझाऊंगी, बट ओनली प्रेसिडेंट. एंड द आर्टिकल कवर्ड इज आर्टिकल 53. अब देखते हैं, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है जब हम थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं. नाउ सी, माई क्वेश्चन ओनली वॉज दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन. ठीक है, वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ये साफ साफ लिखा हुआ है, बट इट इज एक्सरसाइज्ड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू समबडी. मतलब इट कैन बी डन थ्रू समबडी और डायरेक्टली थ्रू हिम ऑल्सो, थ्रू हिम और हर. ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, मतलब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with the constitution. ठीक है, but vested तो president में ही है ना, so for this the answer is only president. but exercise इसको किया कैसे जा सकता है, so exercising authority will also be the president only. So either the president will directly exercise this power or the president will do it through any subordinate officer. By here the subordinate officers basically mean the council of ministers. ठीक है, तो ये वर्ड प्ले पे ध्यान रखेंगे. वेस्टेड पूछ रहा है तो और कुछ दिमाग में नहीं आना है, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कोई गवर्नर, कोई भी अथॉरिटी ध्यान में नहीं आना. इट हैज़ टू बी द प्रेसिडेंट ओनली. ठीक है, एक्सरसाइज पे फिर बात आती है, देन द लैंग्वेज चेंजेस. आई होप दैट इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन. तो यूल से कि मैम दोनों तो सेम ही होना चाहिए. नो, it is different article and this extent of the executive power of union is given in the different article. It is talked about in the article 73. Let us first see article 73 before I give you the answer. So there are two articles which deal with the topic of executive power of union. ठीक है, ये कह रहा है extent of. तो देखो extent क्या कह रहा है, फिर आपसे मैंने क्या पूछा था, नेक्स्ट पॉइंट वाज दैट यू शुड हैव द समरी ऑफ इट, राइट, कि एग्जैक्टली व्हाट इट इज टॉकिंग. इट इज टॉकिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये सब फॉर्मेलिटी होती है, हमको क्या ध्यान रखना है, दैट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल एक्सटेंड टू द मैटर्स with respect to which parliament has power to make laws. So this is one point that you have to remember. ठीक है, so you know that in the 7th schedule to the constitution we have union list, state list and concurrent list, and in general the parliament is able to like allowed to make laws only on the matters of union list. ठीक है, concurrent पे दोनों कर सकते हैं, state वाले state पे करते हैं. state list subjects के लिए we do have certain exceptions, but अभी we are not talking about it. ठीक है, so in general all those matters where the parliament do have the power to make laws, on that the executive power of the union would extend. Okay, this is one point that you will remember. Second thing that you will remember, that it will also talk about or it will include those rights, authorities and jurisdiction which are exercisable by the government of India by virtue of any treaty or agreement. So if any treaty or agreement, even if it has been signed internationally or something by government of India, so उससे related भी जो भी चीज़ें होंगी, that would also be covered by the union. ठीक है, the executive power of union. Other thing that we have to remember in this is that जो वैसे matters होते हैं, देखो ये language क्या कह रहा है, although I had not asked this in the question but I'll help you understand. ठीक है, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाली थी उसको अभी पूछते हुए ना करके आई जस्ट हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट हियर ओनली, एल्स यू माइट गेट कंफ्यूज्ड. प्रोवाइडेड दैट द एग्जीक्यूटिव पावर रेफर्ड इन सब क्लॉज ए, सब क्लॉज ए talks about those matters which are given in the union list. I hope you are clear with this.
because parliament has the power to make laws on the subjects given in the union list in general circumstances में, ठीक है, अभी concurrent पे भी आएंगे, but in general union exclusive power. It shall not save as expressly provided, मतलब except where it is exclusively given in the constitution or any law which is made by the parliament, ठीक है. It should extend in any state to matters with respect to, shall not extend basically, with respect to which the state legislature has also power to make laws. मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूटिव पावर की आप बात कर रहे हो बेस्ड ऑन जो भी यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर में दिया हुआ है, ठीक है, वो ही यूनियन एग्जीक्यूटिव को अलाउड है, एक्सेप्ट अगर स्टेट लिस्ट के किसी मैटर में, so there are certain things which are given in the concurrent list which where both parliament and state legislature both are allowed to make laws, है ना. तो जहाँ पे ऐसा overlapping हो जाए, in that case what will happen, so अगर specifically कहीं लिखा हुआ है that specially हम क्या कर रहे हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर के वो जो पावर्स हैं उनकी बात करेंगे कॉन्करेंट लिस्ट वाले, वहाँ पे जो हमारा यूनियन है वो भी अपना रोल प्ले कर सकता है इफ एट ऑल थिंग्स आर एक्सप्रेसली गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टली कहीं पर क्लियरली मेंशन है और पार्लियामेंट थ्रू मेकिंग ऑफ एनी लॉज हैज़ डन दैट, ठीक है. अब इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी में समझने के लिए, ऑल्दो दैट इज क्लियर इन इटसेल्फ, लेकिन एक और क्लैरिटी अगर आपको लेनी है तो आई विल ऑल्सो टेक यू थ्रू अनदर आर्टिकल which is 162 if I remember correctly. Let me just show that to you. ठीक है. See, this talks about the extent of executive power of the state. Firstly, the power lies with the governor. ठीक है, एक तो ये याद रखोगे, जैसे यहाँ प्रेसिडेंट के हाथ में था तो यहाँ पे किसके हाथ में है, the executive power of the state is vested in the governor and the same thing it will be exercised directly or through officer subordinate, ठीक है, ये तो क्लियर है. बट यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल एक्सटेंड टू द मैटर्स विथ रिस्पेक्ट टू विच द स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ पावर टू मेक लॉज. मतलब स्टेट लिस्ट में गिवन सब्जेक्ट्स पर ये अप्लाई होता है, ये तो क्लियर है. बट अगेन देर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स वेयर स्टेट एंड सेंटर का कॉन्करेंस हो सकता है ना, मतलब दो ओवरलैपिंग पावर्स हो सकते हैं. कॉन्करेंट लिस्ट वाले सब्जेक्ट उसमें क्या, प्रोवाइडेड दैट इन एनी मैटर with respect to which the state legislature and parliament have the power to make laws, ठीक है, वैसे मैटर्स यानी इन शॉर्ट कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर्स पे उसमें क्या होगा, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी सब्जेक्ट टू एंड लिमिटेड बाय द एग्जीक्यूटिव पावर expressly conferred by the constitution or parliament law upon the union or authorities. सेम ही चीज बोल रहा है तू, बस थोड़ा सा लैंग्वेज ये है कि if the constitution or any parliamentary law has given that power very clearly to union or any other authority, so all of those situations would limit or would subject this right to the state. जहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट का मामला है, जहाँ पे ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स का मामला है, वेयर इट इज ओनली अबाउट द स्टेट लिस्ट, स्टेट के पावर है. जहाँ सेंटर लिस्ट यूनियन लिस्ट की बात है, सेंटर के पास पावर है, ठीक है. बट कॉन्स्टिट्यूशन could have expressly given anything separately or parliament by law may give any power to any authority also. Same cheese was mentioned there also, ठीक है, what we just did. I'll just show you again. देखो ये हमने अभी पढ़ा 53, ये वाली लाइन तो हमने कर ली. इस लाइन को मुझे बस ज़्यादा कुछ बताना नहीं है. इट जस्ट टॉक्स अबाउट द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ द यूनियन लाइज विद द प्रेसिडेंट, ठीक है, ये तो आपको पता ही है, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, वही लाइन है, मतलब उसी का मतलब है ये. लेकिन रीड दीज टू, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी डीम्ड टू ट्रांसफर टू द प्रेसिडेंट एनी फंक्शन कॉन्फर्ड बाई एनी एग्जिस्टिंग लॉ ऑन द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट और एनी अथॉरिटी. इन शॉर्ट वॉट इट इज टेलिंग कि इस आर्टिकल में, because we are talking that the whole power, you know, everything lies with the president, does not mean that if any existing law has given any power or any function to any state government or any other authority, that will be invalid or that will be transferred to the president. No, nothing in this article is transferring that.
अगर कोई लॉ स्टेट अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट या अथॉरिटी को कुछ पावर देता है तो वो उनके साथ रहेगा, ठीक है। इन जनरल बाकी सारी चीज़ें प्रेसिडेंट के पास हैं, बट थ्रू एनी लॉ दिस कुड बी डन। एंड ऑल्सो nothing will prevent the parliament from conferring by law functions on any authority other than the president. तो अगर पार्लियामेंट को लगता है that some function needs to be given to any other authority, parliament can just make a law and do that, ठीक है। So I hope this is clear to you, and I was actually willing to give a lot many questions in this class only. I had prepared a list of questions related to president and then certain things about like indirect questions थे, और लेकिन चूंकि इसको एक्सप्लेन करने में भी ये थोड़ा लेंदी हो गया है, तो आई वुड नॉट वांट टू कीप इट वेरी लॉन्ग, क्योंकि इतना लंबा कोई देखता नहीं है और फिर उसमें मेहनत जाता है, टाइम जाता है, और मैं आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट वेयर एम आई इन्वेस्टिंग माई टाइम. So I hope this answer I have given to you. Now you can just quickly check from here how many things you have learned just in this much of part. You can just check if you were able to recall everything, because you can see it is all taken not only from constitution. आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ोगे आपको ये सब मिलेगा. तो मैंने अपने से कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं पूछी हैं, लेकिन दीज आर माइन्यूट थिंग्स विच वी यूजुअली स्किप, बिकॉज हमें लगता है हमने बुक पढ़ लिया तो हमें सब याद था. Now you can check your score accordingly. Score doesn't mean +2 and minus 2.3 और 6 करके वो सब कुछ नहीं करना है कैलकुलेट. जस्ट सी कि इतने सवाल में से हमने कितने सही करे, ठीक है. एंड इफ़ यू have been benefited by the remaining part of the initiative, initial 15-20 minutes was about intro and all of those things, but बाकी सारी चीज़ें अगर आपको फ़ायदे की लग रही हैं, if you feel that I should continue with the initiative of different subjects, ठीक है, just let me know. And I already have a list of topics to cover, like already some questions made which I wanted to start here in this class only, but because of the length I would be keeping it for some other lecture, so you can let me know if I have to do that for you, ठीक है. आपका रिस्पॉन्स आएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ. आई एम अनफॉर्चुनेटली और मे बी फॉर्चुनेटली नॉट लाइक ऑल दी अदर चैनल्स और एजुकेटर्स, जहाँ पे मैं आपको सिर्फ प्रमोशन के लिए भर के चीज़ें दूंगी. अगर मुझे दिखेगा कि मेरी मेहनत और काम की कदर की जा रही है, आई वुड ऑल्सो रिस्पॉन्ड इन अ सिमिलर वे. एज आई सेड, I would not prefer to invest the time. So you can just quickly let me know and tell me how was it, or any other modification that you would have wanted me to go ahead with. So take care till then. I'll see you guys in the next video, hopefully. Bye bye.